اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈنے والا خود لاپتہ ہو گیا۔ رب تعالیٰ کی ذات کی تلاش میں جو انسان نکلتا ہے وہ خود ایک راز بن جاتا ہے۔ ایک عام انسان رب کی ذات کو تو کیا ہی سمجھے گا، رب تعالیٰ کی ذات کے راز کو جس انسان نے پا لیا اس انسان کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں بولا نا کہ اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈنے والا خود لاپتہ ہو گیا۔ وہ انسان جس کے سینے کے اندر قدرت کے راز پنہا ہوں گے، اس انسان کو تم سمجھنے کے لیے بھی صدیاں لگا دو گے، اس عقل سے تم اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، تو رب کی ذات کو تو کوئی کیا ہی سمجھے گا۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تلاش میں جب کوئی انسان نکلتا ہے تو اسے آخر دکھائی کیا دیتا ہے، اسے آخر اینڈ پہ جا کے ملتا کون ہے، اسے ملتا کیا ہے، اسی چیز کی حقیقت میں آج ہم اترنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کر لینا کہ 40 سال لگاتار آپ عبادت کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مشاہدے، مجاہدے، تزکیہ نفس، ہر اچھا کام آپ کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا نفس مکمل طور پر درست ہو جاتا ہے، نفس راضیہ مرضیہ ملہمہ سے آگے گزر کر نفس مطمئنہ کی سٹیج پر تم جا پہنچتے ہو، مکمل طور پر تم ایک ایسا وجود بن جاتے ہو جو وجود تیار ہے، جو وجود اس چیز کے لیے تیار ہے کہ عالم ہلکت کے دروازے تم پر سے ہٹیں اور عالم امر کی غار سے وہ پہلا دروازہ تم پر اوپن ہو، یعنی روحانیت کا پہلا پردہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ہٹے، تو ہوگا کیا؟ دیکھو سلطان فرماتے ہیں کہ جب انسان اس قدر تیار ہو جائے کہ اس کا دل مکمل طور پر آئینہ ہو جائے، اس کے اندر سے مکمل طور پر بشری قدورت ختم ہو جائے، دل اللہ اللہ کرتا ہو، زبان اللہ اللہ کرتی ہو، نماز انسان کی قائم ہو، ہر وقت انسان عاجزی مسکینی میں زندگی گزارے، تو یہ وجود ایک ایسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے جس پر عالم امر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ عالم امر کا دروازہ اس غار کا منہ کھلے گا تو تمہاری ذات کے اوپر ایک تجلیات کا بھنور آئے گا، ایسے نزول ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بران رحمت کی بارش ایسے برسے گی جیسے کوئی سیلاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو وسعت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کے کرم کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کا ایک قطرہ بھی آپ کو سیلاب کی طرح لگے گا، ایک قطرہ بھی آپ کو رحمت کا پہاڑ لگے گا، اتنا بڑا تجلیات کا بمر آئے گا، اتنی تجلیات تمہاری ذات پر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ ڈیپ کانسیپٹ ہے۔ اگر اس تجلیات کے بمر کو میں کھولوں، سلطان فرماتے ہیں کہ اگر اس تجلیات کے بمر کو میں لکھنا شروع کر دوں، اس کو کھولوں تو سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، عقلیں ماند پڑ جائیں گی، ہزاروں قافلے اجڑ جائیں گے۔ اس تجلیات کے جو رحم کی تجلیات کی کرم کے دریائے، اس کی ساری حقیقت کو انسان آشکار نہیں کر سکتا، سب کچھ انسان لکھ نہیں سکتا۔ ان تمام چیزوں کو جب میں نے پڑھا تو ان میں سے کچھ چیزیں، صرف کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب عالم امر میں انسان کے لیے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ جہاں پر تجلیات کے بمر انسان دیکھتا ہے، اس پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی تجلی انسان کیا دیکھتا ہے؟ تجلی ہدایت۔ دیکھو یاد رکھنا، ہدایت نماز پڑھنا نہیں ہے، ہدایت روزہ رکھنا نہیں ہے، ہدایت کسی کے ساتھ بلائی کرنا نہیں ہے، یہ شرع شریعت کے اصول ہے، یہ شرع کے اندر حکم ہے جو سب نے کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت ان تمام لوگوں میں سے جو مسلمان ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان میں سے جسے چاہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو ہدایت ایک علم ہے، ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک روشنی ہے، ہدایت ایک انرجی ہے، ہدایت ایک لائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس کی قدرت صرف خدا کی ذات کے پاس ہے، اور وہ چنتا ہے اپنے منتخب بندے کو، ہدایت کا نور عطا کرتا ہے۔ تو جب ہدایت کا نور سلطان فرماتے ہیں انسان کو اللہ کی جانب سے عطا ہو، جب آپ کا وجود مکمل طور پر تیار ہو، آپ پر پہلی جو تجلی ہوتی ہے وہ ہدایت کا نور، تجلی ہدایت تمہاری ذات پر ہوگی، اور یہ تجلی تم ان آنکھوں سے نہیں دیکھو گے بلکہ اپنی ذات کے اندر فیل کرو گے، ایک بہت زیادہ کشش، ایک پیاس، ایک آگ بڑک اٹھے گی تمہاری ذات کے اندر حق کو جاننے کی، حقیقت کو جاننے کی، ذات کی حقیقت کو جاننے کی، روح کی حقیقت کو جاننے کی، کائنات کی حقیقت کو جاننے کی، پروردگار کی حقیقت کو جاننے کی، حقیقت محمدیہ کو جاننے کی، اہل بیت کا اتحار کا مقام و منزلت کو جاننے کی، ولایت کو سمجھنے کی، عالین کو سمجھنے کی، یہ ساری چیزیں ایک حقیقت کے طور پر، ایک پیاس کے طور پر، ایک شدت کے طور پر، ایک کشش کے طور پر تمہاری ذات کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ایک ہدایت کا نور ہے جس کا پہلا قطرہ تمہاری ذات کے اندر آئے تو تمہاری ذات کی یہ کیفیت بن جائے گی جس کو تم ابھی دیکھو گے نہیں، صرف اندر سے تم فیل کرو گے۔ تو اس کے بعد سلطان فرماتے ہیں دوسری تجلی ہے تجلی توبہ۔
बड़ा सुनने में आसान सा लफ्ज़ है, तौबा हम रोज़ करते हैं, रोज़ तोड़ देते हैं। रोज़ाना कहते हैं कि आज ये स्मोकिंग छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, रोज़ाना नमाज पढ़ूंगा, रोज़ाना तोड़ दूंगा। ये नहीं, ये तजल्ली तौबा है, ये और चीज़ है। तजल्ली तौबा से मुराद क्या है कि तुम्हारे लिए अब एक रास्ता मुतय्यन कर दिया गया, पक्की तौबा। किससे? इस दुनिया से। तुम अब आलमे अमर में ही ट्रैवल करोगे, तुम्हारे लिए तरीकत का दरवाजा खुल गया, ये तुम्हारा रास्ता है, ये इश्क का मैदान है, इस पे तुमने सफर करना है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब तुम्हारी तौबा टूटी तो तुम पक्के काफिर हो। अब इश्क के मैदान को तुम छोड़कर भागे तो तुम पक्के काफिर हो। इश्क जिसे रद्द दे उसे दुनिया का कोई मजहब कबूल नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला की जात वो तजल्ली भी तुम्हारी जात के अंदर जो है ना वो पैदा कर देगी कि तुम्हें एक रास्ता दिखाई देगा अपनी जात के अंदर से, एक चीज दिखाई देगी, एक तरीकत का रास्ता दिखाई देगा और तुम उस रास्ते पर चलना ही चलना है। इसके बाद तीसरी तजल्ली क्या होगी? तजल्ली जिक्र। देखो, जिक्र हम भी करते हैं, जुबान से जिक्र करते हैं, लेकिन तजल्ली जिक्र हो रहा है। तजल्ली जिक्र से मुराद क्या है कि जिक्र इसम तुम्हारे जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाएगा। इसम और जिस्म एक दूसरे से जुदा नहीं रहते, एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो जाते हैं। तुम्हारी जुबान खामोश है, तुम्हारा दिमाग दुनिया का काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारे वजूद के अंदर मौजूद कन कन खुदा की जात को याद करता है। अंदर से अल्लाह अल्लाह। आलमे तस्बीहात का दरवाजा तुम पर खोल दिया जाएगा। ये तस्बीहां जो तुम दुनिया में मिलते हैं, जब कोई तुम्हें अता कर रहा है, वो तस्बीह हो रहा है। ये आलमे तस्बीहात के अंदर से तस्बीहात का नजूल होगा। तुम्हारे दिल के अंदर वो विर्द, वो चीज जो अल्लाह ताला की जात को उस वक्त तुम्हारी जात की इस्लाह के लिए जरूरी है। ये स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ऐसे कि इंसान की जात के अंदर से तस्बीहात इंसान को अता होती है जिसका कभी आपने सुना भी नहीं होता। वो चीजें तुम्हारी जात के अंदर, जैसे एक बड़ा बड़ा मशहूर एक सबक जो बहुत ही खुले खुले राज की तरह आश्कार हो गया कि अल्लाह हुस्समद दम सावरे वली मियां मोजदा दरिया खोल रहम दिखल। तो ये एक सबक था, ये एक सबक था, एक बातनी सबक। आलम तस्बीहात के अंदर से इंसान की जात के अंदर बेदार हो जाता है। और वो तस्बीहात के आलम की वजह से, किस वजह से होता है कि तजल्ली जिक्र तुम्हारी जात के अंदर होती है। इसके बाद जो दर्जा आता है ना, यहां से मुझे आपकी तवज्जो चाहिए होगी, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत गहराई में इंसान जाने वाला है। तजल्ली अफ़आल, ये क्या चीज होती है? देखो, पहले अफ़आल को समझो, फिर तजल्ली को समझ पाओगे तुम। तजल्ली अफ़आल से क्या मुराद है? अफ़आल है फेल की जमा। फेल किसे कहते हैं? कोई भी अमल, कोई भी काम, कोई भी कार्रवाई जो हो रही है ना, मतलब आप जिक्र कर रहे हो तो एक फेल है जो आप कर रहे हो। आप कर रहे हो लेकिन वो फेल कर रहे हो, वो फेल अलग है। दूसरा क्या होता है? फाइल। फाइल कौन है? कि आप इसे कर रहे हो। एक फेल है, एक फाइल है, इन दोनों को जमा करके अफ़आल। ये तजल्ली अफ़आल जब इंसान की जात पर पड़ती है, तब इंसान पर यह हकीकत खुल जाती है कि मेरी हकीकत कुछ भी नहीं है। ये जो अना, ये जो मैं है ना, ये इंसान का बीच में नहीं आता। फिर खुद आप अपनी जात को कंट्रोल नहीं करते। आपकी जात पर जब ये तजल्ली होती है तो आप देखते हो अपनी जात के अंदर कि जिक्र मैं नहीं कर रहा, मैं जिक्र होते देख रहा हूं। अंदर कर कोई और रहा है, करने वाली रूह है, इसको अता करने वाला कोई बाहर से है। यानी एक चोजन सोल आपकी सोल के साथ एंगेज है, वो आपको जिक्र अता कर रही है, आपकी सोल इसको जिक्र को कर रही है। और आपका वजूद सिर्फ और सिर्फ एक मैदान की तरह है जिसके अंदर ये इश्क का खेल खेला जा रहा है। आपका बस खत्म हो जाएगा, हकीकत आप पर अयां हो जाएगी। जिसे तजल्ली अफ़आल कहते हैं कि बारिश भी, जमीन भी और फसल भी होगी, फल भी हुआ, सब कुछ तुम्हारी जात के अंदर हो। जैसे सुल्तान फरमाते हैं ना कि मन मेरे विच मुर्शद, क्या वो शेर है, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि मेरे मन विच मुर्शद बूटी लाई हो, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। वो क्या होता है? हकीकत इसकी क्या है कि वो बूटी लगाने वाला भी कोई और है, उसको पानी भी खुद बहुत दिया जा रहा है, उसको परवान भी खुद चढ़ी है, और सब कुछ ये होता हुआ इंसान अपनी जात के अंदर देख रहा है। ये सब कुछ तुम अपनी जात के अंदर देखोगे खुले मैदान की तरह कि तुम्हारी जात के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा अमल दखल उसमें इतना नहीं होगा, तुम्हारी बसात से बाहर की चीजें, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी सोच के तुम दुनिया में काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जात के अंदर एक इश्क का मैदान चल रहा है। कर भी कोई रहा है, आ भी कोई रहा है, जा भी कोई, ये सब कुछ तुम अपनी जात के अंदर होता देखोगे। इसके बाद पांचवा जो बहुत ही एक बड़ी चीज है, उसके बाद सुल्तान फरमाते हैं कि तजल्ली सिफात इंसान की जात पर आती है। अल्लाह ताला की जात के इस्मा का नजूल होगा। तजल्ली सिफात से मुराद है अल्लाह ताला की जात की जो सिफाती इसम है ना, तजल्ली। देखो, तजल्लियात दो किस्म की है। जब रब की बात की जाती है तो एक तजल्ली अलूहियत है, एक तजल्ली रबूबियत है। अलूहियत वो तजल्ली जो जाती तजल्ली होगी, इसमें अल्लाह जात की तजल्ली होगी, और रबूबियत वो है जो अल्लाह ताला की जात के इस्मा की सिफाती तजल्ली होगी। वो वाली तजल्लियात इंसान पर नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। रबूबियत, रब कौन है? अर्रहीम, अर्रहमान, अल करीम, अल कदूस, अल्लाह ताला की ज़ात की सिफाती तजल्लियात है जो इंसान की ज़ात पर होती है। और जब ये वाली तजल्लियात इंसान की ज़ात पर होती हैं तो ये सिफात इंसान की ज़ात के अंदर बेदार हो जाती हैं।
मतलब जो तजल्ली सिफाती तजल्ली तुम्हारी ज़ात के अंदर होती है, वही वाली सिफ्त तुम्हारी ज़ात के अंदर बेदार हो जाती है, वही वाली स्पिरिचुअल ताकत तुम्हारी ज़ात के अंदर भी आ जाती है। यहाँ तक सूफिया बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो हर बंदा समझ नहीं पाता। यहाँ तक बातें की जाती हैं कि जब इंसान के अंदर सिफाती तजल्लियात का नज़ूल होता है तो इंसान की ज़ात के अंदर से रब की कुदरत ज़ाहिर होती है। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात आपके वजूद से काम लेती है। अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? आलम अहदियत के अंदर एक ऐसी ज़ात जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात इस दुनिया में आकर जब कोई भी काम करता है, कुछ भी लेते हैं, आलम असबाब के अंदर कोई ना कोई सबब पैदा करता है, तो वो सबब तुम बन जाओगे। तुम्हारी ज़ात के थ्रू अल्लाह ताला की ज़ात अपने काम लेगी, तुम्हें यूज करेगा, तुम्हारे दिल के आईने के थ्रू अल्लाह ताला की ज़ात फैजान को बांटेगी। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि किसी अल्लाह के औलिया की दरगाह पे जाते हैं तो जाकर वहां पर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर, अल्लाह मेरे लिए ऐसा काम करके जिससे मुझ पे कोई चीज़, तो उसके अंदर क्या होता है कि रिज़्क में इजाफा हो जाए। उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात की एक तजल्ली या सिफाती इसम जिंदा होता है, जिससे इसमें अर्रहमान कहते हैं। उस इसमें अर्रहमान की ताकत की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात रही होती है, लेकिन सबब वो बना हुआ, वसीला वो बना, उसके वसीले के थ्रू अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता करती है। तो ये तजल्ली सिफात है, तजल्ली रबूबियत है, तजल्ली अल्लाह ताला की ज़ात के इस्मा की सिफाती इसम इंसान की ज़ात के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद छठी तजल्ली क्या है? तजल्ली इसमें अल्लाह ज़ात, ये समुंदर है। जब इसमें अल्लाह ज़ात ज़ाती इसम इंसान की ज़ात के अंदर, अपने कल्ब के अंदर इंसान देखता है, तो सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि तमाम सिफात अल्लाह ताला की ज़ात के सिफाती नाम भी इंसान की ज़ात के अंदर बेदार हो जाते हैं, और इंसान की उस वक्त ऐसा ही समझ ले कि सिर्फ और सिर्फ एक रूह बाकी रह जाती है। इंसान की बशरी कदूरत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। इंसान अपनी ज़ात को फील तक नहीं कर पाता। इंसान खुद को भी ढूंढे अपनी ज़ात के अंदर, मैं को, तो मैं ख़त्म हो जाती है। जहां पर अक्सर फ़कीर कहता है ना, मैं नहीं तू, मैं तू हूं या तू, मतलब कि अपनी ज़ात, बशरी कदूरत, अपने फैसले, अपनी ज़ात, तुम्हारा मर्जी चली गई नहीं। कुछ भी तुम अपनी ज़ात के ऊपर अपनी ज़ात को मुसल्लत नहीं कर देगी। तुम्हें छींक भी आएगी ना तो उस कुदरत वाले की मर्जी से कि हर जानिब से तुम्हें वो घेर लेगा। तुम्हारी ज़ात पर मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात हावी हो जाएगी। हर शय, वो कहते हैं मैं गालिब आ जाता हूँ, गालिब आ जाने वाली ज़ात है, वो तुम्हारी ज़ात को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगा। हर शय तुम्हारी उसकी कुदरत में होगी, तुम्हारी मैं मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, बाकी सिर्फ वही ज़ात रहेगी। तुम इस चीज को होते हुए अपनी ज़ात के अंदर फील करोगे, तुम्हारे पास क्या होगा? एक सांस, उस सांस के अंदर भी तुम्हें इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाहू की सदा आएगी, और तुम्हारी ज़ात के अंदर एक रूह बाकी रह जाएगी। ये दो चीजें सिर्फ तुम फील करोगे अपनी ज़ात के अंदर। तुम्हारी रूह भी मगन होगी दीदार के अंदर, यानी जलवे देखती रहेगी। तुम्हारी सांस के अंदर जो सांस की आवाज है उसके अंदर भी अल्लाहू जारी होगा, और हर वक्त तुम्हारी जुबान, तुम्हारा कन कन, तुम्हारा रोम रोम जिक्र में मशगूल हो जाएगा। जब अल्लाह ताला की ज़ात की इसमें अल्लाह ज़ात यानी इस्मा व हसना का जो नॉलेज है, जो तजल्लियात है इंसान की ज़ात पर पड़ती हैं, तो ये छठा मुकाम है। उसके बाद आती है तजल्ली फना, इंसान के अंदर बचरी की दूरत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। फिर एंड पे तजल्ली बका, बका की मंजिल पे जाएगा, तो बका बिल्ला की मंजिल। इस पे होता क्या है? बहुत मुश्किल चीज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत आपकी मोहब्बत को पर हावी आ जाएगी, यानी इश्क तुम करते हो, ठीक है, लेकिन हकीकत में इश्क तुम नहीं कर रहे। तुम्हारी मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत में बदल जाएगी, तुम नहीं करे। वो एक तसव्वुफ में अक्सर बात की जाती है ना कि वो बुलाता भी खुद है, वो जाता भी खुद है, वो देखता भी, देखने वाला भी वो है, और दिखाई भी वो दे रहा है, मंजर भी वो है और नाजर भी वो है। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाता है कि अपने मोमन बंदू के मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं दिलों में बसता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की फिरासत से डरो कि मोमन अल्लाह के नूर से देखता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत तुम्हारी ज़ात पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाती है। तुम्हें वहदत के दरिया के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता है। मैं से तू तक का सफर, इस सारी स्टेज से गुजरने के बाद जो बंदा यहाँ तक पहुँचता है उस बंदे को भी कोई नहीं समझ पाता। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था, उसके घर का पता ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खुद लापता हो गया। जिसने रब के राज को जान लिया वो खुद एक राज बन चुका है। उसको जानना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान आखिर है क्या। जब वो बात करता है, जब वो चलता है, जब वो घूमता है, जब वो फिरता है, जब वो कुछ लिखता है, तो इंसान की अक्ल तो समझने से कासर होती है कि ये बंदा किस लेवल पे जाके क्या बात कर रहा है, हम इसको समझ क्यों नहीं पा रहे। तो समझ कैसे आएगी जब तुमने इश्क का कतरा दरिया के किनारे पे बैठ के सिर्फ समुंदर को बहता हुआ देखा है। तो कभी भी तुम नहीं समझ पाओगे जब तक तुम उसके अंदर डुबकी नहीं लगाओगे और तुम ये जान नहीं जाओगे कि तुम्हारी ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है, कितना वसी। अल्लाह ने बोला ना कि खलीफा है ये मेरा,
اللہ کے خلیفہ ہو تم، زمین پہ نائب ہو تم اللہ کے، تو یہ کیسا نائب ہے؟ اس کو سجدہ اللہ نے خود کروایا. یہ ساری چیزیں سلطان فرماتے ہیں انسان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب انسان رب کی تلاش میں نکلتا ہے. آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین.